kindly let me know in the group itself. And what is the purpose of group discussion? And there were few queries that what you have to present as per the assignment, or what is there in the syllabus. I'll just open up the syllabus and tell you people. But sir, when the class got cancelled, we thought like today we are not going to present. I thought that way. Oh, there a notice regarding the cancellation No. of class? But there was like no notice also, like like someone else is like going to take a class and like you are going to continue for this presentation and all. Okay, okay, okay. Yeah. So this was a like miscommunication from their end. So everyone was of like all of us Okay. were like confused regarding this. So because this is a centralized class, so we actually cannot cancel it unless and until the center No, from the university cancels it. no, that's fine. We can discuss or like continue with something else then. It's okay, okay. But just I'm just clearing that out for other students as well, that Yeah. this MP06 class Mm-hmm. cannot be cancelled in such a way. This is an Okay. announcement to all the students. So Yeah. um, That we unless and understand. until there is an written notice from the central management of the university, Mm-hmm. me or any other teacher cannot cancel the MP06 class. No issues. Rest all the courses like MP05, etc. for PhDs, they can be on the personal or mutual understanding Okay. between the departments and the student, etc. Okay, sir. So, well, coming to the syllabus, publication misconduct, a group discussion, RP05. This group discussion also contains, or the university has advised us to let the students present, maybe in group, maybe individually. But topic can be anything, maybe something related to your research which you want to do, or any of the topic. Pick any one of the topic from the theory, practice, or database research matrices, anything which is there in the syllabus. Just one topic, a 10-minute presentation, just to see that how you present, and just to see the format of the presentation, so that we are able to tell कि ये थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट आप सुधार लीजिए जो कि आपको आगे प्रोग्रेस रिपोर्ट्स में मदद करेगा जाके, just to see that, nothing else. So if I got message from one of the students, so if tomorrow you people want to give the presentation, that will be really welcome. I'll make the presenter. And okay, if there was a misconduct regarding the notice, just a second. जर्नल पेज लाइव प्रेजेंटेशन ताकि कितना सही और कितना गलत हो सकता है. Just by an example from the presentation or the assignment or a report, we are able to deduce how to further progress in the syllabus or the publication ethic. So regarding that, okay, if today the people are not presenting because of some notice issue or communications issue, so maybe tomorrow or after that next week, you are requested to please give your names in the group and the topic you want to present. 5 to 10 Excuse me, minutes. sir. Excuse me, sir. Yes. Uh, Sir, I wanted to ask. I'm still unclear कि present क्या करना है, sir. About the paper or about a certain topic. ओके. प्रेजेंट आपको कोई भी एक टॉपिक अपने इच्छा से ले लेना है. वो आपके रिसर्च से भी हो सकता है, या फिर कोई भी सिलेबस जो MP06 का जो सिलेबस है उसमें प्रैक्टिस है, थ्योरी है, RPE 01 2 3. अगर आपको अपना रिसर्च से रिलेटेड कुछ नहीं प्रेजेंट करना है,
तो जो हम लोग नॉर्मल पढ़ाते हैं जो क्लास में, आप उसी में से एक टॉपिक उठा लीजिए और छोटा सा प्रेजेंटेशन बना के प्रेजेंट कर दीजिए। जस्ट हमको फॉर्मेटिंग देखनी है आपके प्रेजेंटेशन की, एंड Okay, sir. Thank you. know ki what can be the misconduct, so that we can correct and prepare you for the progress presentation. That is the only motive. Rishabh sir, हाँ जी। I have just now I have shared one paper to you. I'm like going to Bhutan to present the paper, so I have shared on your WhatsApp number. Okay, so can you please have a look on it? Like, whether you have received it or Actually, not. please do not send these papers and all, because this will create an issue. Okay, Because you should only share all these things with your guide or the departmental okay, concerned person. got it. Even if I check it and say to you, I have to do it unofficially. Okay, got it, And sir. officially, it will create conflict of interest between the department, and they can say me that how can you, deduce a law kind Yeah. of paper or something. Okay, got it, sir. That Got will it. create a problem between the departments. This is conflict of interest. Sure, sir. So Sure, if got you it, sir. come to me Yeah. personally, that is another thing, but Okay, officially, I cannot do it. okay, okay. No issues, sir. Thank you. Excuse me, sir. So yeah, this is an example of conflict of interest. I hope you get Yeah. it. Yeah, Miss Harinder Kaur, yes. सर मुझे यही पूछना था कि जैसे कोई भी टॉपिक, जैसे हमारा नर्सिंग फील्ड है तो हम कोई भी डिजीज कंडीशन पे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हाँ हाँ, कुछ भी ठीक है टॉपिक सर। आपका, कुछ भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ओके हमको सर। केवल उसके फॉर्मेट से और किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन बनाते हो उससे मतलब है, नॉट फ्रॉम द ओके टॉपिक। टॉपिक इज योर्स, एनी ऑफ द टॉपिक विच यू वांट टू ठीक पिक है, यू जस्ट कैन। फिर मैं सर कल प्रेजेंट करूंगी। Okay, okay. Please give your name in the group with the topic. ओके सर, ओके। Any other question regarding this? कुछ अगर आपको डाउट है, so you may ask. Otherwise, I'll just move forward with another topic very briefly. Um, I think use of plagiarism software was done by the other teacher or not? Kindly someone tell me कि ये use of plagiarism software like Turnitin और कौन ये वाला topic हो गया है कि नहीं हुआ है? No, sir. Okay. No, sir. No, Okay. sir. Okay, okay. Thank you for the information. So this is a very very vast topic. इसके बीच में हम बार बार बात करते रहेंगे। ये topic मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि ये चीज़ ना presentation में भी आ सकती है आपके। Plagiarism means कि किसी चीज़ को copy कर लेना, कहीं से कुछ भी copy कर लेना। Not only research paper, not only review paper, not only thesis, but also designs. जैसे फैशन डिज़ाइनर है, अगर किसी डिज़ाइनर ने किसी सेम कलर के पैटर्न का कोई फैब्रिक के ऊपर पर्टिकुलर डिज़ाइन बनाया है, सपोज साड़ी बनाई है, उस पर एक पर्टिकुलर डिज़ाइन बनाया है, और सेम मिलता जुलता डिज़ाइन विदाउट एनी सब्सटैंशियल चेंजेस कोई दूसरा उसको प्रेजेंट कर देता है या उसकी कॉपी बना लेता है, दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। इन द सेम वे आपकी रिसर्चेस होती हैं, ऑब्वियसली पूरा का पूरा रिसर्च तो नॉवल नहीं होगा, उसमें कुछ डेफिनेशंस होंगी, उसमें कुछ प्रोसेसेस होंगे जो कि पहले किसी ने वो इन्वेंट किए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज डेंगू के ऊपर आपने कुछ डेंगू के लिए ड्रग बनाया है, डेंगू को ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए यू हैव बिल्ड अप अ मेडिसिन। सो व्हाट इज डेंगू, फ्रॉम व्हाट वेक्टर मॉस्किटो से वो होता है, फैलता है, उसका पैथोजन यानी कीटाणु कौन है, ये तो पहले किसी और ने खोज लिया होगा। पैराफ्रेज मतलब उसकी लैंग्वेज इधर उधर जंबल कर दिया, सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची यूज कर दिया, इस तरह की चीजें। एंड देन यू एक्चुअली रेडिली चेक पेपर्स, बार बार प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर में डाल के आप चेक करते हो कि कितना प्लेजरिज्म कम हुआ नहीं हुआ। एंड ऑल्सो जहाँ पे भी आप चेक करते हो, आफ्टर चेकिंग डिलीट द फाइल, बिकॉज अगर कोई भी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है उसमें बार बार पाइल अप होते जाएगा फाइल, दैट में क्रिएट अ प्रॉब्लम। सेकेंडली, अगर आप रिव्यू पेपर लिख रहे हो, अब रिव्यू में तो आप केवल डिफरेंट डिफरेंट जो रिसर्चेस पहले हो चुकी हैं उन्हीं को आप उठा के एक रिव्यू बना दे रहे हो, तो उसमें तो भाई प्लेजरिज्म बहुत ज़्यादा आएगा। तो उसको चेंज कर, और ये सेम चीज़
रिव्यू ऑफ लिटरेचर में दी जाती है। आप जो पीएचडी कर रहे हो उसमें जो भी रिसर्च कर रहे हो, इससे पहले कितनी उसमें रिसर्चेस हो गई और ऐसा क्या उसमें छूट गया, व्हाट इज द गैप लेफ्ट दैट यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर रिसर्च, जिसकी वजह से आपको पीएचडी करनी पड़ रही है और ये रिसर्च करनी पड़ रही है। ऐसी क्या कमी रह गई एग्जिस्टिंग लिटरेचर में, ऐसी एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स, रिव्यूज एंड रिसर्च में उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। So obviously you give a big, very vast review of literature, which is perhaps the thickest chapter in thesis. वहाँ पे प्लेजरिज्म सबसे ज़्यादा आता है, यही कॉपी पेस्ट की वजह से। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अनअवॉइडेबल हो जाती हैं कि उसको कितना भी जंबल कर रहे हो उसमें से प्लेजरिज्म नहीं जाता है। सो उसको हटाने का तो कोई तरीका नहीं है, बट फ्रॉम द रूल ऑफ यूजीसी बोला गया है कि 10 to 12 कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स प्लेजरिज्म में काउंट नहीं होंगे। तो कोई भी प्लेजरिज्म डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर जब होता है, आप उसमें वर्ड लिमिट डालते हो कि अगर 12 वर्ड्स किसी पर्टिकुलर पेपर से कॉपी हो रहे हैं तो वो रीड ना हो थीसिस में। अगर 12 से ज़्यादा लगातार वर्ड्स एक ही सेंटेंस में कॉपी हो रहे हैं किसी थीसिस में, तो वो प्लेजरिज्म में आ जाएगा। This is for the thesis, but from a personal advisory basis, as a personal advice from my side, always keep your word limit below 5। कि आप अपना डॉक्यूमेंट ऐसे प्रिपेयर करो कि आप उसकी वर्ड लिमिट 5 वर्ड्स पर प्लेजरिज्म के नीचे रखो, जिससे कि बाय चांस कितना भी तगड़ा सॉफ्टवेयर कोई जर्नल कोई रिव्यूअर उस पर लगाएगा तो वो 12 से नीचे या 10 से नीचे ही शो करेगा। ओवरऑल प्लेजरिज्म शैल बी बिलो 10। थीसिस के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बोलता है कि बिलो 20 होना चाहिए, उस पर रिलायबिलिटी दे देते हैं, बट जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड परसेंटेज है प्लेजरिज्म की, इट शुड बी बिलो 10 फॉर रिसर्च पेपर एंड रिव्यू पेपर। कुछ इंस्टीट्यूशंस कुछ जर्नल्स रिव्यू पेपर के लिए बिलो 20 कर देती हैं, थोड़ी सी रिलायबिलिटी दे देती हैं, बट ट्राई टू मेक इट बिलो 10। और पैराफ्रेजिंग करके, सिनोनिम्स यूज करके, स्पेशली लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके और साइटेशंस को इधर उधर करके प्लेजरिज्म को अवॉइड किया जा सकता है, बट नेवर कॉपी पेस्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पेपर एज इट इज। अगर आपने कोई फिगर कॉपी किया है किसी पेपर से, रीप्रिंट किया, उसको हम रीप्रिंट कहते हैं, उसका परमिशन लेना होता है। और 3 से 4 प्रकार के लाइसेंस होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसी बारे में ब्रीफ कर दूंगा। टेक्स्ट प्लेजरिज्म के बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज हम बात करते हैं पिक्चर प्लेजरिज्म के बारे में। सो इफ पॉसिबल आई विल गिव अ डेमो कि किस तरीके से आपको किसी भी जर्नल के लिए जाना होता है। जस्ट अ सेकेंड, let me open a journal and then I'll try to share my screen with you all. Okay, so my screen is visible. Yes, sir. I hope visible. Yes. So दो तरीके के कॉमन लाइसेंस होते हैं किसी भी पिक्चर को प्राप्त करने के लिए। सपोज ये एक पेपर हमने खोला, ये ओपन एक्सेस पेपर है। अब मुझे ये डेटा, ये पर्टिकुलर पिक्चर जो है वो एज इट इज प्रिंट करनी है अपने किसी रिव्यू पेपर में, तो हम यहाँ से ये डाउनलोड कर लेंगे इमेज, बट कैन आई यूज इट इन माई पेपर और नॉट? विदाउट गेटिंग द परमिशन
वो इसके लाइसेंसिंग पे डिपेंड करेगा। तो जर्नल के उस वाले पेपर के आप कहीं पे भी देखिए, या तो ऊपर कहीं पे गिवन होगा या फिर नीचे कहीं पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, राइट्स एंड परमिशन करके कुछ इस तरीके का सेक्टर गिवन होगा, या फिर इसके पास कौन सा लाइसेंस है ये गिवन होगा। जैसे यहाँ पे ये वाली लाइन पढ़िए, कॉपीराइट 2021 by the authors, licensee MGPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of Creative Commons Attribution CC BY license. So there are three type of license: CC BY, CC BY ND, and CC BY commercial distribution. What is CC BY? क्रिएटिव कॉमन्स, इट मीन्स इट इज ओपन टू ऑल। आप जैसे भी चाहें इस आर्टिकल में से कोई भी फोटो कहीं पे भी पब्लिश कर सकते हैं बिना परमिशन के। जस्ट यू हैव टू गिव साइटेशन ऑफ द ऑथर्स बिलो दैट पर्टिकुलर फिगर, जैसे रीप्रिंटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑथर, नथिंग एल्स यू हैव टू give, no special permission required. This is CC BY license. After that, if we come to most of the elsewhere journal, suppose environmental pollution ये एक जर्नल है, इसका ये पेपर हमने खोल लिया, यहाँ पे इस वाले सेक्शन में गेट राइट्स एंड कंटेंट, यहाँ पे जब हम जाते हैं एक डिफरेंट पेज खुल जाता है, परमिशन पेज, जहाँ से हम परमिशन ले सकते हैं। अब हमको सपोज इस पेपर में से कोई फिगर चाहिए, मे बी ये वाली फिगर चाहिए, इसका ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट, जो कि हम अपने रिसर्च में यूज करना चाहते हैं। अगर ये भी CC BY लाइसेंस होता तो यहाँ पे इस जगह लिखा आ जाता नो स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड, यू जस्ट हैव टू साइट द ऑथर्स विद कॉपीराइट 2025 एल्सेवियर और द ऑथर्स। बट यहाँ पे एक लिंक खुल रहा है, ये पहले क्वेश्चंस पूछेगा आपसे और उसके बाद बताएगा कि इसमें कौन सा लाइसेंस है, क्या आपके लिए वो चार्जेबल है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आई वुड लाइक टू यूज द फिगर। मे बी दूसरी जर्नल में मैं पब्लिश, अगर मैं अपने रिव्यू पेपर में उसे करना चाह रहा हूँ तो मैं रीयूज इन अ जर्नल करूँगा, और अगर मुझे अपनी थीसिस में छापना है, उसे रीयूज करना है, तो मैं उसको थीसिस में करूँगा। बड़ा कौन सा है ये? Yes. So after that, the page has been refreshed and it is now asking I am an, आप कौन है। So हमेशा अभी इस करंट स्टेज में आपको लिखना है एकेडमिक एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एकेडमिक एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक नॉन प्रॉफिट इंडिविजुअल को डिनोट करता है। बाकी आप सारा कुछ जब ऊपर से नीचे तक देखेंगे, दैट मे और मे नॉट इंक्लूड प्रॉफिट, बट दे आर टॉकिंग अबाउट अदर देन द इंडिविजुअल्स, या तो पब्लिशर के बारे में, या किसी कंपनी के बारे में, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बट एकेडमिक एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज फॉर द organization, non-profit, and an individual who belongs to a particular organization, जैसे कि हम लोग हैं, we are the faculties or the scientists in the particular organization working for an academic organization. Secondly, you people are the research scholar in this particular academic organization, so always select this option. After that, again the page will analyze itself. So it will ask what is your publisher, आप कहाँ पे कौन से पब्लिशिंग हाउस में उसे पब्लिश करना चाहते हैं। सपोज मुझे उसे ACS, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी में पब्लिश करना है। अगर वो पर्टिकुलर जर्नल इस लिस्ट में नहीं है तो अदर्स लिखा हुआ होता है इसमें, आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। फिर पूछ रहा है आई वुड लाइक टू यूज, क्या आप क्या इसमें यूज करना चाहेंगे, फिगर, टेबल, इलस्ट्रेशन। मुझको फिगर चाहिए, तो फिगर वाले ऑप्शन पे हम चले गए। कितना फिगर चाहिए? 1। What is my format? Print, electronic, both print और electronic. It means journal केवल electronic है, journal केवल print देती है, या दोनों print and electronic. For your thesis it is print and electronic both, but for the journal it can be electronic only. फिर ये पूछ रहा है क्या आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल के ऑथर हैं या नहीं। अपने आर्टिकल्स की भी परमिशन आपको अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लोज्ड एक्सेस में पब्लिश कर रहे हैं तो कॉपीराइट किसको शिफ्ट हो गया है? जर्नल को। सो आई एम नॉट द ऑथर ऑफ दिस, रीपब्लिशिंग इट इन इंग्लिश। नाउ ये पैसे बताएगा USD में। अभी देखिए
इसने 0 प्राइस बताया, यानी ये फ्री में है। मैं कंटिन्यू दबाऊंगा तो परमिशन डाउनलोड हो जाएगी। अगर कोई और जर्नल होती अदर्स में जाके तो शायद यहाँ पे रुपीस आ जाते। अगर आप पे करना चाहते हैं तो आप पे करके ले सकते हैं, नहीं तो गो फॉर ओपन एक्सेस या फिर इस तरीके की जर्नल चूज कीजिए जिनका तालमेल रहता है दूसरी जर्नल्स के साथ कि वो पे ना करें। कंटिन्यू दबाएंगे। We'll just log in if you have a personal account. अब हम इंफॉर्मेशन डालेंगे XYZ, जो भी आपके नए आर्टिकल का टॉपिक है उसके बारे में डालेंगे। लीड ऑथर कौन है वो डालेंगे, कौन सी जर्नल आपने टारगेट करी है वो डालेंगे। पब्लिशर अमेरिकन केमिकल सोसाइटी था, और कब तक पब्लिकेशन हो जाएगी वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे एंड यहाँ पे अब ये पूछ रहा है कि उस पर्टिकुलर पेपर में जहाँ से आपने ये फिगर उठाई है उसका फिगर नंबर क्या था, तो मे बी फिगर नंबर 4। इफ द रिक्वेस्टिंग पर्सन ऑर्गेनाइजेशन टू अपीयर ऑन द लाइसेंस, क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम इस पर्टिकुलर लाइसेंस पे आए या नहीं आए, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आए। सो दैट्स अप टू यू। आप अपना नाम दे सकते हैं, नहीं तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे सकते हैं। अब ये जो आया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द लाइसेंस। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेप्ट करके, एंड इसको प्रिंट करके PDF बना के अपने पास रख लेंगे। ये परमिशन अगर आप इस तरीके की परमिशन लेते हैं अपनी थीसिस में, अगर आपने कुछ रीप्रिंट किया है तो थीसिस के एंड में इन परमिशंस को लगाना होता है। और कोई भी आप अगर जर्नल में पब्लिश कर रहे हैं कोई पेपर, तो जर्नल तो एकदम से नहीं मांगती है ये, लेकिन फॉर अ सेफर साइड आपके पास ये परमिशंस होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार कुछ अगर चेकिंग हो जाती है या समथिंग एल्स, किसी ने जो ऑथर है जहाँ से आपने ये फिगर डाली है उसको एतराज़ हो जाए कि बिना हमारी परमिशन के कैसे डाल दी, नो मैटर आपने साइट भी कर रखा है, नो मैटर कुछ भी किया है, सो परमिशन फ्रॉम द ओरिजिनल ऑथर और द जर्नल हैज़ टू बी देयर। So very few people, and also after doing PhD, a person's credibility is just known by the way you present, maybe in different conferences. Teaching is also a presentation, etc. So it would be highly appreciated and motivation friendly if you present. Secondly, talking about plagiarism, we have covered the figure plagiarism and license obtaining topic today. We would be talking about furthermore if the time permits tomorrow after 1 or 2 presentations. If there will be no more presentations, we'll continue with the coursework. So in that manner, in the same way जैसे हमने अभी आपको बताया figures के बारे में, how to obtain license for the figures, you can obtain license for the tables or some other information in that particular paper. So elsewhere में इस तरीके से given रहता है get rights and content, MDPI में नीचे इंडिकेटेड किया हुआ रहता है कि आपको कैसे राइट्स एंड परमिशंस मिलेंगे। स्प्रिंजर में थोड़ा सा अलग जाता है। स्प्रिंजर में आप जब पेपर के पूरा नीचे जाते हैं कहीं पे, देन मे बी आपको वो पर्टिकुलर दिख सकता है उस पेपर से रिलेटेड जो भी साइंटिफिक परमिशंस हैं। So I'm just searching. I'll show you one more way to do so. Yes. Let me share the screen again. So this is a paper from Springer Nature Link, and they have this type of format, very user friendly format of their
appearancing. So this is a mini index. उसमें abstract sections क्या है? Abstract, introduction, material methods, results and discussions. Data availability, it means कि इसके पीछे जो machinery data होगा वो अगर आपको चाहिए तो references, acknowledgement, funding, जो कि हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, supplementary information, rights and permission, the topic what we are talking about today. This one, इस पे हमें चाहिए, किसके लिए चाहिए? जब आप सेकंड कॉलम में जाते हैं तो फिगर्स में भी यहाँ से आप हाई क्वालिटी फिगर्स पहले डाउनलोड करते हैं किसी पेपर का, फुल क्वालिटी फिगर, save image as or any other way which you have, you can do that. फिर इसका परमिशन हम लोग इस वाले सेक्शन में जाके लेंगे, rights and permissions. So it has opened up the section which is talking about rights and permissions. So this is open access. It means ये CC BY license के अंदर है, हम इसके figures जैसे चाहें वैसे use कर सकते हैं, even for the commercial purposes we can use it. But अगर कोई article ये देखिए, ये इसका license आ गया, it is CC BY, Creative Commons CC BY license, which permits unrestricted use, distribution, reproduction in any medium provided the original work is cited. The only condition with CC BY is कि आपको cite करना है author को कि कहाँ से लिया है. Suppose this could be Sarah et al. Sorry, Sarah and Fortune 2025. This will be citation जहाँ पे भी आप इसकी figures या tables use कर रहे हैं. अगर यहाँ पे CC BY ND लिखा होता है, इट मीन्स यू कैन यूज इट इन योर थीसिस और पेपर, बट उससे आप पैसे नहीं कमा सकते. मतलब सपोज इनके पेपर से लिया हुआ कोई भी पिक्चर आप किसी मैगजीन में नहीं दोगे जो कि कमर्शियली बिकेगी फिर और आपको पैसा मिलेगा. दैट इज CC BY ND, दैट मीन्स नॉन कमर्शियल. बट इन CC BY यू कैन एक्चुअली, आप उस पेपर को या पिक्चर को रिप्रिंट करके you can have financial benefit and assistance maybe in that commercial sector also you can publish it. So this was all about today. If someone has some doubt, please they may ask right now or in tomorrow's class, which will be by me at the 11:20. I think that class happens 11:20 a.m. So thank you for today. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी, बोलिए. सर कल जो प्रेजेंटेशन देनी है उसके लिए हमें अपना जो सिलेबस है उसी में से कोई भी टॉपिक उठा लें. अगर आपका मन है सिलेबस में से कोई टॉपिक उठाने का, आप वो कर सकते हैं. नहीं तो अगर आप कुछ अपनी तरफ से प्रेजेंट करना चाहते हैं रिलेटेड टू द रिसर्च एंड डेकोरम, तो आप वो भी कर सकते हैं. इट इज़ अप टू यू, बट इट शुड बी रिलेटेड टू द साइंस, मतलब जो भी आपका फील्ड है या फिर कोर्स में से भी उठा सकते हैं. ओके सर, थैंक यू सर. Okay. Please quickly write your attendance in the chat box. I'll be then copying it. Now the class is over from my side. Those who want to leave can leave the class. I'm just waiting for the attendance. Okay, thank you so much. Okay, sir. Thanks a lot. Have a nice day. Nice lecture we have attended. Thank you. Thank you so much.